good morning to all of you students. Today we will study the fields and integral domains with results. So first of all, we have to know all these definitions. So what is a left zero divisor? We say that let R under addition and multiplication is a ring, and element A in R is called a left zero divisor if there exists non-zero element B in R such that AB is equal to 0. Similarly, for right zero divisor, an element A in R is called a right zero divisor if there exists non-zero element B in R such that BA is equal to 0. Next is the zero divisor. So an element A in R is called a zero divisor if there exists non-zero element B in R such that AB is equal to 0 and BA is equal to 0. Note that 0 belongs to R is a zero divisor. Next definition is proper zero divisor. So an element that is A in R, and this A should be non-zero, okay, is called a proper zero divisor if there exists non-zero element B in R such that AB is equal to 0 and BA is equal to 0. So if A is a proper zero divisor of R, then B is also a proper zero divisor of R. सो लेफ्ट जीरो डिवाइजर मीन्स कि अगर हमने एक रिंग ली है, उसमें से एक एलिमेंट ए इन आर लिया है, और हमें क्या उस एक एलिमेंट ए को हम लेफ्ट जीरो डिवाइजर कब कहेंगे? अगर हमें एक और एलिमेंट जो नॉन जीरो होना चाहिए इस रिंग से लेंगे विच बिलोंग्स टू दिस रिंग आर सच दैट क्या हो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के इक्वल. सो सेम आपने राइट जीरो डिवाइजर के लिए भी डेफिनेशन लिखनी है, सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे बी ए इक्वल टू जीरो करना है. सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? लेफ्ट जीरो डिवाइजर और राइट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन. सो जीरो डिवाइजर मींस जिसमें क्या होगा, लेफ्ट जीरो डिवाइजर भी एग्जिस्ट करेगा और राइट जीरो डिवाइजर भी एग्जिस्ट करेगा. अब प्रॉपर डिवाइजर में क्या डिफरेंस आएगा? यहाँ पे जो ए लेंगे वो हमें नॉन जीरो लेना है. सो मींस ए भी नॉन जीरो होगा और जो बी होगा वो भी नॉन जीरो होगा, और सच दैट क्या होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज ए बी इज इक्वल टू 0 एंड बी ए इज इक्वल टू 0. Next definition is left or right cancellation property. So a ring R is said to satisfy left or right cancellation property if for all ABC belongs to R, A not equal to 0 and AB is equal to AC and respectively BA is equal to CA implies that B is equal to C. So means अगर एक रिंग R को हम कहेंगे कि वो सेटिस्फाई करता है लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, अगर क्या होगा, हमें A ऐसा एलिमेंट होगा एक जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा और ये सारे एलिमेंट्स आर को बिलोंग करेंगे और ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, दैट इज ए बी किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी के इक्वल होना चाहिए. वो इम्प्लाई क्या करेगा? बी किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल, जब हम इसके ऊपर लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. सिमिलरली जब आप राइट कैंसिलेशन की बात करोगे तो आप इसको चेंज करोगे, यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू सी ए हो जाएगा. सो वहाँ से आपको राइट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के लिए स्टेटमेंट आ जाएगी, और जब और सेम वो यही चीज़ आ जाएगी, बी ए इज इक्वल टू सी ए से बी इज इक्वल टू सी के इक्वल आएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंटीग्रल डोमेन. सो ए कम्यूटेटिव रिंग आर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ आर हैज नो प्रॉपर जीरो डिवाइजर. सो ये मेन लाइन है कि अगर आर में कोई भी प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे, ऐसे कम्यूटेटिव रिंग को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल डोमेन कहते हैं. सो दैट इज फॉर ऑल ए बी इन आर. सो इफ ए बी इक्वल टू 0, सो देन आइदर ए इज इक्वल टू 0 और b is equal to 0. So if or we can say if A is non-zero, B is non-zero, then AB is non-zero. So these are the examples. The ring of integers, ring of rationals, ring of reals and ring of complex numbers are integral domains. Okay. Similarly, the ring Z6 of integer modulo 6 is not an integral domain because here 2 is congruent to 0 mod 6 and 3 is also 2 is not congruent to 0 mod 6, 3 is not congruent to 0 mod 6, but 2 into 3 is congruent to 0 mod 6. Next is the theorem that let R be a ring, then we have to show these following conditions are equivalent. So R has no zero divisor, R satisfies left cancellation property and R satisfies right cancellation property. So यहाँ पे जो theorem है इसमें मैं first implies second करूँगी, then second implies first करूँगी. इसी तरीके से आप show करेंगे कि first imply third को करेगा और third imply वापस first को करेगा. वहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? equivalent होगी. तो मैं एक part prove करके बताऊँगी, second part आप similarly कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड.
मुझे कैसे शो करना है, मैं ऐसे शो करूँगी, फर्स्ट जो है वो इम्प्लाई कर रहा है सेकंड को, या आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड एंड सेकंड भी क्या कर रहा है, इम्प्लाई फर्स्ट को। फिर हम शो करेंगे फर्स्ट इम्प्लाई कर रहा है थर्ड को, और जो थर्ड है वो वापस इम्प्लाई किसको कर रहा है, फर्स्ट को कर रहा है। यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। जब फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हम लेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज आर हैज नो जीरो डिवाइजर्स, हमें शो करना आर सेटिस्फाइज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, दैट इज लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो सपोज आर इज अ रिंग, सपोज द रिंग आर has no zero divisors, has no zero divisors. So let A, B, C, this belongs to R and A, ये हम लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लगा रही हूँ. So A is नॉन ज़ीरो एंड A B किसके इक्वल आना चाहिए, A C के इक्वल. So then यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी जो होगा दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए इंटू बी माइनस सी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. इस पार्ट को यहाँ पे क्योंकि अब ये पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए जो होगा ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, बट जो बी माइनस सी है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, क्योंकि ए तो स्टार्टिंग में हमने लिखा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमें क्या होना चाहिए, यहाँ जो हमारे पास ए है, ए नॉन ज़ीरो है. स्टेटमेंट से ही आ गया. यहाँ से लिखेंगे बी माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आर हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स. दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी. यहाँ से क्या आ जाएगा, b किसके इक्वल आ गया, c के इक्वल आ गया. पहला पार्ट प्रूव हो गया. अब हम इसका रिवर्स पार्ट प्रूव करेंगे. तो सेकेंड इम्प्लाइज फर्स्ट. सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जो रिंग आर है वो सेटिस्फाई करता है लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. द लेट द रिंग आर सेटिस्फाई द लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. अगर ये लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और हमें क्या शो करना है, इसमें रिंग में नो ज़ीरो डिवाइजर्स है. मैं यहाँ पे डेफिनेशन लगाती हूँ नो ज़ीरो डिवाइजर्स की. दैट इज लेट ए इन आर बी सच दैट ए क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए. देन हमें एक एलिमेंट बी मिलेगा उस रिंग में. बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल होगा. देन वी कैन राइट. अब मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो. इस ए बी इक्वल टू ज़ीरो को मैं अगेन, इस ज़ीरो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटू ज़ीरो. यहाँ से क्या होगा, हम इसके ऊपर लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जब लगाएंगे वो हमें क्या देगा कि बी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा. बाय लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. ये हमारा एक पार्ट हो गया. अब हमें इसका दूसरा रिवर्स पार्ट भी देखेंगे, बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो वाला पार्ट. नाउ इफ बी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन फॉर बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी we have BA is equal to ज़ीरो and this is also equal to B इंटू ज़ीरो. लिख सकते हैं. अगेन यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि A हमारे पास क्या था, नॉन ज़ीरो एलिमेंट था. आई विल राइट हियर विच इज़ ए कंट्राडिक्शन, विच इज़ ए कंट्राडिक्शन. ये कंट्राडिक्शन हो गया. दस BA is equal to 0 implies B is equal to 0. A is not a zero divisor, is not a zero divisor. Hence, R has no zero divisors. सिमिलरली हम इसका सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली
we can show 1 implies third and third implies first. Hence proved. So next is the division ring. So we say that a ring R with unity means 1 that is not equal to 0, is called a division ring or skew field if every non-zero element of R is a unit. So that is, if for any A in R, A should be non-zero, there exists an element B in R such that AB is equal to BA is equal to 1. So division ring किसको कहेंगे? हम कहेंगे एक रिंग R with unity, उसको हम डिवीजन रिंग कब कहेंगे या स्क्यू फील्ड कब कहेंगे? अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो R का होगा वो क्या होना चाहिए? वो यूनिट होना चाहिए. दैट इज फॉर एनी A in R, A क्या होना चाहिए? नॉन जीरो. देयर एग्जिस्ट B in R such that AB is equal to BA is equal to identity, or we can say equal to 1, that is unit. So और हम इस तरीके से भी डिवीजन रिंग को डिफाइन कर सकते हैं. A ring with unity in which all non-zero elements form a group under multiplication is called a division ring or skew field. So next is the definition of field. So a commutative division ring is called field. So means वो division ring जो क्या होनी चाहिए? commutative भी होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? field कहते हैं. For example, ring of reals, rationals, complex are division rings which are fields. So ये division rings है और ये क्या है? ये fields भी हैं. So जैसे एक example है. सो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि ये डिवीजन रिंग है मगर ये फील्ड नहीं है. जैसे आर लिया है, ये सेट ऑफ दिस मैट्रिक्स लिया है मैंने, और फील्ड यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स का है. सो अल्फा बार एंड बीटा बार मीन्स कंजुगेट ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो अंडर यूजुअल एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ डिवीजन रिंग विच इज़ नॉट अ फील्ड. सो मीन्स ये एक एग्जाम्पल ऐसी है जो डिवीजन रिंग तो है मगर ये फील्ड नहीं है. सो नेक्स्ट इज द थ्योरम प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो हमें ये प्रूव करना है हर एक फील्ड जो है दैट इज एन इंटीग्रल डोमेन. सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट आर बी ए फील्ड, आर बी अ फील्ड एंड ए बी बिलोंग्स टू आर. सो ए बी क्या है? एलिमेंट्स है इस आर से. सच दैट इंटीग्रल डोमेन के लिए हमें लेना है तो हम लिखेंगे सच दैट ए शुड बी नॉन ज़ीरो एंड ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए. ओके, सो ये हमारे पास आ गया. सो सिंस जो ये ए है दिस इज नॉन ज़ीरो और ये किसको बिलोंग कर रहा है? रिंग आर को. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज अ यूनिट एंड हेंस अगर ए इसका यूनिट है तो मीन्स इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा. सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स इन रिंग आर. सो देन ए बी किसके इक्वल आ रहा है? ज़ीरो के इक्वल है. सो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इंटू ए बी, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ज़ीरो. सो बोथ साइड से इसको ए इनवर्स से मल्टीपल कर दिया. सो यहाँ से ये ज़ीरो के इक्वल आया. सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए देन बी, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. और अब जो ए इनवर्स इंटू ए है दैट इज़ आइडेंटिटी, दैट इज़ यूनिट, दैट इज़ वन, एंड दिस इज एंड बी दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? बी की वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो. सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया? आर हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स. So thus R is a commutative ring with unity, that is 1 not equal to 0 and without zero divisors. बहुत सिंपल है ये प्रूव करना. सिर्फ डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए और वही यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई करना है. सो हेंस आर क्या बन गया? एक इंटीग्रल डोमेन बन गया. आर इज एन इंटीग्रल डोमेन.
hence proved. So next example is that prove that every theorem is that prove that every finite integral domain is a field. So ये भी बहुत important theorem है. So हमें ये show करना है कि जो finite integral domain अगर हम कोई लें वो field होगा. field के लिए क्या prove करना होता है कि means उसमें unit element आएगा. Okay. So हम इसको बहुत simply से prove करेंगे. So सबसे पहले हम लिखेंगे let R be a finite integral domain. So R be a finite integral domain. ओके. सो सपोज इस R में कैसे एलिमेंट्स है, क्योंकि ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले रही हूँ तो मैं इसमें एलिमेंट्स ले रही हूँ A1 A2 सो ऑन अप टू AN, क्योंकि ये फाइनाइट है. सो लेट एक एलिमेंट A जो इस R से ले रही हूँ और ये A क्या है, दिस शुड बी नॉन ज़ीरो. एंड वी कंसीडर, मैं एक सेट कंसीडर करूँगी एंड वी कंसीडर the set S which is equal to, उसमें कैसे एलिमेंट्स होंगे A into A1 then A into A2 so on up to A into AN. So अब जो ये सेट S है ये इसका क्या होगा, इस R का सबसेट होगा. So I will write then S is subset of R since, क्यों, R क्या है, closed under product. Since R is closed under product. सो मान के चलें कि इफ़ जो A इंटू ए आई है वो किसके इक्वल होगा, A इंटू ए जे के इक्वली, जहाँ पे I जो होगा दैट इज़ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू I एंड जो J होगा दैट इज़ लेस देन इक्वल टू N. ठीक है. सो देन क्या हो जाएगा, हमारे पास जो AI है वो AJ के इक्वल हो जाएगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. बाय लेफ्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और A क्या है, नॉन ज़ीरो है. ऑल्सो A क्या है हमारे पास, दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सो दिस इम्प्लाइज एलिमेंट्स ऑफ जो S होंगे वो क्या है, डिस्टिंक्ट है. सो एलिमेंट्स ऑफ S आर डिस्टिंक्ट. सो ऑर्डर ऑफ जो ये जो सेट S का ऑर्डर होगा वही R का भी ऑर्डर होगा. सो मीन्स ऑर्डर ऑफ S इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ R. सो ऑल्सो हमारे पास था कि S किसका सबसेट है, R का सबसेट है. सो दिस इम्प्लाइज दैट S किसके इक्वल हो गया. सो S इज इक्वल टू R. सो अब जो ये R है, क्योंकि फील्ड के लिए हमें ये भी शो करना है कि इसमें यूनिट होना चाहिए. सो सिंस R contains unity that is 1, we have 1 also belongs to this set S, that is 1 is equal to A into AJ for some J and this 1 is less than equal to J is less than equal to N. So this implies A क्या आ गया, इसका यूनिट आ गया. सो A इज यूनिट एंड सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट. सो ये हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा. फॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट A of R. So therefore every non-zero element of R is unit. सो अगर हर एक एलिमेंट जो है, हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो R का होगा वो यूनिट होगा. सो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो ये R है ये फील्ड है. सो वी कैन राइट हेंस R इज़ ए फील्ड. और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. सो दिस इम्प्लाइज दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ ए फील्ड. सो थैंक यू.